and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Governmental Guru. Let's compete. Today, I will discuss office procedure, and in office procedure, I will discuss records management. It is related to the part one. In this part, I will discuss record management activities involved, stages of records management, stages of recording, categorization of records, and also in this part I will briefly explain each and every part related to the records management, and also I will discuss 10 very valuable MCQs. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So according to the demand of many candidates, just I bring office procedure, so that in subsequent time also I bring many parts, and it is very important one for different central government exams. And now upcoming exams are there related to the NVS, KVS and EMRS, so it would be very useful for you. So my friends, join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. My two Telegram channels are there. One is t.me/BAPI2034 and second one t.me/ASIT2034. If you join the Telegram channel, then you can get notification for my upcoming videos, and systematically you can get all the videos. So now I am going to start first part related to the office procedure, and this part related to the records management. So first of all, it is Department of Administrative Reforms and Public Grievances, DARPG. So play the very important role, the nodal department. It is the nodal department for all office procedure, e-office procedure and record retention schedule for common records to all ministries or department. इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है. तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इज द नोडल डिपार्टमेंट. Okay, who control and manage the office procedure, e-office procedure and record retention schedule for all common records to all ministries or department. Next one, you see activities involved in records management. Different activities are there related to the records management. First one, records management, what is the definition? How to define records management? It means proper handling of official records or files in an office. जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, फाइल्स है, उसको प्रॉपरली हैंडल किया जाएगा. जो भी इश्यूज है उसको उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, और कंप्लीशन होने के बाद उसको नंबरिंग, फाइल को नंबरिंग किया जाएगा, इंडेक्स किया जाएगा. तो इजीली कैसे फाइल को लोकेट किया जा सकता है और उसको रिटर्न किया जाएगा, और जो डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड रूम में रखा जाएगा, और जो रिटेंशन शेड्यूल है, कितना दिन तक हम उसको रिटर्न कर सकते हैं, उसको रिटर्न करेंगे. उसके बाद उसको रिव्यू और वीड आउट करेंगे. ठीक है, यदि वो हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस है तब हम नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया को भेजेंगे. ठीक है, तो इट मीन्स प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ रिकॉर्ड्स और फाइल्स मीन्स रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट. अच्छा, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट वन रिकॉर्डिंग है. रिकॉर्डिंग में क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और फाइल्स व्हेन वर्क इज डन. तो फर्स्ट फाइल को क्रिएट किया जाता है, और व्हेन इट मीन्स द प्रोसेस, the continue process is there. When the file is being processed, it means the file is active one. When the file is being processed, the file is active one. So issues are there. It means related to the matter, so that when all decisions have taken on the issues, जब वो सभी डिसीजन ले लिया जाएगा मैटर्स के ऊपर, तब उसको रिकॉर्डिंग किया जाएगा. इट मीन्स फाइल नंबर और उसका इंडेक्स और उसको लोकेट करने के लिए जो भी प्रोसेस है उसको करके ओके उसको रिटर्न किया जाएगा. तो फर्स्ट रिकॉर्डिंग, फर्स्ट वन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और फाइल्स व्हेन वर्क इज डन. Second one, retention, keeping the record safely for a fixed period according to the record retention schedule. मेरा सेकेंड पार्ट में आएगा. तो रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल है, ठीक है, उसको कितना दिन तक हम रिटेन कर सकते हैं,
उसके बाद उसको हम रिव्यू करेंगे, और यदि उसका फर्दर यूजफुलनेस नहीं है तो उसको हम वीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंड एक्टिविटी है रिटेंशन। थर्ड वन रिट्रीवल। रिट्रीवल मीन सपोज कभी कभी उसको फिर हमारा जरूरत है, हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। लोकेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग रिकॉर्ड्स क्विकली व्हेन रिक्वायर्ड। सपोज कोई आरटीआई एप्लीकेंट आरटीआई डाला, ओके, रिलेटेड टू द मैटर एक्चुअली केप्ट इन द फाइल, तो कि सपोज ऑडिट को जरूरत है, जो फाइल में जो मैटर है, कि कोई रिफरेंस का जरूरत है, तब हम फाइल को लोकेट करेंगे क्योंकि फाइल का नंबर हो चुका है और उसको इंडेक्स में हम रख चुके हैं, तो इजीली हम लोकेट करेंगे और उसका जो रिकॉर्ड है हम प्रोड्यूस करेंगे। तो ये है रिट्रीवल, ठीक है। और नेक्स्ट वन वीडिंग आउट। वीडिंग आउट, सपोज जो रिटेंशन शेड्यूल है, जो रिटेंशन पीरियड के बाद हम इसको रिव्यू करेंगे। यदि रिव्यू में पता चला कि उसका फर्दर यूजफुलनेस नहीं है, कि उसको और कहाँ पर भी यूज नहीं किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और रिमूविंग रिकॉर्ड्स आफ्टर देयर रिटेंशन पीरियड इज ओवर। तो ये सब एक्टिविटीज है, जैसे रिकॉर्डिंग है, रिटेंशन है, रिट्रीवल है, वीडिंग आउट है। तो इसके ऊपर आपको जैसे अभी जो केवीएस एनवीएस सीएमआरएस में है कि डिस्क्रिप्टिव आएगा। तो यदि कुछ रिकॉर्ड मैनेजमेंट, हाउ टू डिफाइन रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन रिकॉर्ड मैनेजमेंट, आप उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, यू सी द रोल ऑफ द डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स ऑफिसर, डीआरओ, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट, आप देखिए ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 1993, पब्लिक रिकॉर्ड्स रूल्स 1997, उसके ऊपर पब्लिक रिकॉर्ड्स के ऊपर जो एक्ट आया था 1993, इसके ऊपर रूल्स है 1997। तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि एवरी डिपार्टमेंट और ऑफिस दैट क्रिएट्स रिकॉर्ड्स मस्ट अपॉइंट ए डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स ऑफिसर। तो जो अकॉर्डिंग टू द पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 1993 एंड द पब्लिक रिकॉर्ड्स रूल्स 1997, एवरी डिपार्टमेंट और ऑफिस में जो रिकॉर्ड्स क्रिएट होता है, सो दैट क्रिएट्स रिकॉर्ड्स मस्ट अपॉइंट, वहां पर डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स ऑफिसर का अपॉइंट होना जरूरी है, क्योंकि वही है सुपरवाइजिंग अथॉरिटी, वही है मॉनिटरिंग अथॉरिटी, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स ऑफिसर। ऑल records actually maintain under the supervision of departmental records officer, DRO. Important points। अच्छा, जो DRO है उसका रैंक क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। द ऑफिसर मस्ट नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्शन ऑफिसर। जो भी डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स ऑफिसर होगा उसका मिनिमम रैंक सेक्शन ऑफिसर होगा, उससे कम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, द डीआरओ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ओवरऑल जो रिकॉर्ड्स को मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन का, ये रेस्पॉन्सिबल किसका है, डीआरओ का। तो यहां पर दो चीज आपको रिमेंबर करना है, जो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स ऑफिसर है उसका रैंक क्या होगा, उसका मिनिमम रैंक सेक्शन ऑफिसर होगा, और ऑल्सो डीआरओ इज रेस्पॉन्सिबल टू मैनेज ऑल द रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ड्यूटीज भी देख लेंगे, मेन ड्यूटीज ऑफ डीआरओ, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स ऑफिसर, एंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स, जो भी फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स है उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाएगा। रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल, जो टाइमिंग है कि हम इसको 1 ईयर रिटेन करेंगे कि 3 ईयर्स की 5 ईयर्स की 10 ईयर्स कि सपोज वो परमानेंट एक्चुअली रिटेन किया जाएगा, क्योंकि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज है, तो वो आर्चिव्स, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया में भेजेंगे। कि जो कैटेगरी बी में कुछ इट मीन्स गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस ऑर्डर से जो उसको परमानेंटली रखा जाएगा, तो जो भी रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल है उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट वन, सुपरवाइज वीडिंग आउट ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स। जो शेड्यूल के हिसाब से जो रिटेंशन पीरियड है, उस मैटर को सपोज रिटेंशन के बाद उसको रिव्यू और वीड आउट किया जाएगा, उसको रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू में क्या होगा कि उसको फर्दर एनालाइज किया जाएगा कि सपोज इट कैन बी यूज्ड फर्दर reference or not. If it is not used for further actually reference, कि it is not useful for it means postering activities, then उसको weeding out कर दिया जाएगा. Ensure records are available for audit, inspection, RTI.
चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन की ऑडिट और इंस्पेक्शन में रिकॉर्ड्स चाहिए, तो वो भी डीआरओ जो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स ऑफिसर है वो इंश्योर करेगा कि रिकॉर्ड्स एक्चुअली है, रिकॉर्ड्स को उनके सामने रखेगा. ओके, द डीआरओ कीप द रिकॉर्ड in front of the audit inspection and also providing information to the RTI applicant. ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स ऑफिसर के ऊपर. ठीक है, ये सेकंड था. चलो स्टेजेस को देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेजेस ऑफ रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट. फर्स्ट वन, हम रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे. सपोज कोई मैटर अराइज होता है और मैटर के ऊपर इश्यूज है, तो फर्स्ट एक रिकॉर्ड्स को क्रिएट किया जाएगा. ठीक है, देन यूज ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को हम यूज करेंगे, यूज ऑफ रिकॉर्ड्स. ठीक है, देन रिकॉर्डिंग होगा, यूज ऑफ रिकॉर्ड्स के बाद रिकॉर्डिंग, देन उसको रिटर्न किया जाएगा, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स. देन नेक्स्ट वन, ट्रांसफर टू डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम. ओके, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स मींस नेक्स्ट उसको डीआरआर जो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा. फिर हम उसको रिव्यू करेंगे, एनालाइज करेंगे और रिव्यू और वीड आउट. देन कुछ अप्राइजल में देखेंगे, अप्राइजल में देखेंगे कि इसका क्या यूजफुलनेस है, उसको प्रॉपरली एग्जामाइन करेंगे, क्या उसको रखेंगे कि फाइनली सपोज जब हम रिव्यू करने के बाद फिर हम अप्राइजल को चलेंगे, प्रॉपरली थॉरोली एग्जामाइन करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसफर टू, सपोज वो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट है कि बहुत इंपॉर्टेंट एक मीन्स रिकॉर्ड है जो एवरी टाइम एक्चुअली बेसिकली द डिपार्टमेंट ऑफिसेस अंडर द डिपार्टमेंट दे आर यूजिंग दैट रिकॉर्ड, तो वो ट्रांसफर टू एनएआई, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया. तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट है. फर्स्ट रिकॉर्ड क्रिएट किया जाएगा, कोई मैटर कोई इश्यू आ जाता है तो उसके ऊपर ओके जो भी नोट्स है कि कॉरेस्पॉन्डेंस है उसको क्रिएट हम करेंगे, उसी मैटर रिलेटेड में नोट्स होगा, उसी मैटर्स के ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, फिर वो रिकॉर्ड्स को हम यूज करेंगे. ठीक है, और रिकॉर्डिंग में क्या है, सपोज व्हेन द फाइल इज बीइंग प्रोसेस्ड देन द फाइल इज एक्टिव वन. आप जानते हो जब फाइल प्रोसेस हो रहा है, चल रहा है, तो वो फाइल एक्टिव है. और व्हेन ऑल द डिसीजंस हैज टेकन ऑन द इशू, जो भी इश्यूज था, यदि पूरा डिसीजन उसके ऊपर लिया जा चुका है, उसको प्रॉपरली नंबरिंग किया जाएगा और उसको प्रॉपरली इंडेक्स किया जाएगा, क्योंकि हम फ्यूचर में उसको प्रॉपरली लोकेट कर सकते हैं. फिर उसको हम रिटर्न करेंगे, और रिटेंशन शेड्यूल आप जानते हो, तो वो उसको हम ट्रांसफर करेंगे जो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में रहेगा. ठीक है, और उसका रिटेंशन शेड्यूल को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाएगा. सपोज उसको 5 ईयर्स तक हम रखेंगे, 5 ईयर्स के बाद उसके ऊपर रिव्यू होगा, नहीं तो हम वीड आउट करेंगे. तो रिव्यू और वीड आउट. नेक्स्ट वन अप्राइजल. कभी कभी क्या है, रिव्यू करने के बाद हम उसको और एक बार थॉरोली एग्जामाइन करते हैं, क्या वेदर इट वुड बी डिस्ट्रॉयड, कि वेदर इट वुड बी रिटर्न, कि वेदर एक्चुअली इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द एनएआई, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया, ड्यू टू द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, कि ड्यू टू द रिपीटेडली और इंटरमिटेंटली यूज बाय द ऑफिसेस अंडर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. ठीक है, तो ये है स्टेजेस ऑफ रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट. ये स्टेप्स को अच्छे से याद रखिए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आ सकता है और ये सीक्वेंस भी एमसीक्यू में आ सकता है. क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, उसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट स्टेजेस. फर्स्ट वन, क्रिएशन ऑफ रिकॉर्ड्स में बताया था कि चाहे लेटर्स, फाइल्स, रिपोर्ट्स, ऑर्डर्स, नोट्स प्रिपेयर्ड इन एन ऑफिस, कोई मैटर इशू आ जाता है तो इशू के ऊपर लेटर्स, इशू के ऊपर फाइल्स, इशू के ऊपर रिपोर्ट्स, ऑर्डर्स और नोट्स प्रिपेयर्ड इन एन ऑफिस, तो ये फर्स्ट स्टेज है. इट इज क्रिएशन ऑफ रिकॉर्ड्स. व्हेन एनी इशू इज क्रॉप अप, देन the letters can be issued, the files can be created, also the reports actually can be prepared, orders also issued, notes and correspondence also would be there. Okay, तो ये सब है creation of records. Next one, second one, use of records. Okay, records को हम यूज करेंगे ऑफिशियल वर्क में, डिसीजन मेकिंग में. सपोज रिफरेंस, कोई रिफरेंस है वो रिकॉर्ड को यूज करेंगे ऑडिट पर्पज में, और अदर कम्युनिकेशन, कोई आरटीआई में मांग रहा है, और कोई आरटीआई एप्लीकेंट सपोज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर इशू और रिलेटेड टू द पर्टिकुलर मैटर, उसको भी इन्फॉर्म करना है, तो यूज ऑफ रिकॉर्ड्स. जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो उसको हम वो फाइल में रखेंगे, तो वो ऑफिशियल वर्क, फॉर फर्दर ऑफिशियल वर्क, की फर्दर डिसीजन मेकिंग, की फर्दर रिफरेंस, की फॉर ऑडिट पर्पजेस, की इंफॉर्मेशन टू द आरटीआई एप्लीकेंट, तो ये सब में वो यूज होगा रिकॉर्ड्स. ठीक है, नेक्स्ट वन, रिकॉर्डिंग जब आता है, रिकॉर्डिंग मीन्स
जब पूरा डिसीजन लिया जाएगा जो इश्यूज है, ठीक है, मैं बताया था जो भी इश्यूज है मैटर के ऊपर, ऑल द डिसीजंस हैव टेकन, देन उसको प्रॉपरली नंबरिंग किया जाएगा और प्रॉपरली इंडेक्स के आकार में रखा जाएगा। तो जब हम उसको फिर चाहिए उसको फिर ओपन करेंगे, सपोज ऑडिट के लिए कि रिफरेंस के लिए कि आरटीआई एप्लीकांट को जवाब देने के लिए, तो वो इंडेक्स को जाकर हम सर्च कर सकते हैं। ओके, इंडेक्स में जाकर प्रॉपर नंबर के हिसाब से हम सर्च कर सकते हैं। सो इजीली इट कैन बी ट्रेस्ड। ओके, नेक्स्ट वन, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स। फिर हम रिकॉर्ड्स को एक फिक्स्ड पीरियड है जो रिटेंशन रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल है, उसके उस हिसाब से हम उसको रिटेन करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज ट्रांसफर टू डीआरआर, जो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम को उसको ट्रांसफर कर देंगे। सपोज अभी उसको रखे थे ऑफिस में, अभी वो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में हम रखेंगे। ठीक है, व्हेन रिकॉर्ड्स आर नो लॉन्गर एक्टिवली यूज्ड, जब उसमें जो भी इश्यूज था वो इश्यूज के ऊपर सभी डिसीजन हम ले चुके हैं। ओके, ऑलरेडी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज टेकन डिसीजन इट मींस ओवर द मैटर्स इट मींस अवेलेबल इन द फाइल, तो उसका देयर इज इट मींस नो नीड नाउ ओके फॉर फर्दर यूज, तो उसको हम शिफ्ट कर देंगे डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में फॉर सेफ स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आएगा रिव्यू और वीड आउट। अच्छा, उसको जो रिटर्निंग पीरियड है वो भी फिक्स है। अच्छा, उसके बाद उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, कि रिटेंशन इफ देयर रिटेंशन पीरियड इज ओवर, दे हैव नो फर्दर वैल्यू, उसका और कोई वैल्यू नहीं है, सो इट कैन बी डिस्ट्रॉयड और वीड आउट उसको, क्योंकि फाइल जो है कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अभी उसका रिटेंशन पीरियड सपोज फॉर एग्जांपल इमेजिनरी एग्जाम 5 इयर्स था, 5 इयर्स के बाद हम रिव्यू करेंगे, उसका कोई एनी अदर वैल्यू नहीं है, तो उसको क्यों हम इट मींस रखेंगे, वो स्पेस एक्चुअली कंज्यूम कर रहा है। ओके, तो इसके लिए उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ओके, सो इट मस्ट बी रिव्यूड प्रॉपरली। यहां यदि हम देखते हैं कि उसका जरूरत है आगे में, तो फिर उसको हम रिटर्न करेंगे, नहीं तो वीड आउट करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है अप्राइजल। जब रिव्यू लेने के बाद सम रिकॉर्ड्स आर एग्जामाइंड, ओके, अप्राइज्ड टू डिटरमाइन वेदर दे हैव हिस्टोरिकल, हम चेक करेंगे रिव्यू के बाद, हम चेक करेंगे सम रिकॉर्ड्स को प्रॉपर थॉरोली एग्जामाइन करेंगे, क्या उसका कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, कुछ लीगल मैटर्स में उसका यूजफुलनेस है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू है, उसको हम चेक करेंगे। यदि हाँ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है और रेगुलरली इंटरमिटेंटली और रिपीटेडली इट कैन बी यूज्ड फॉर लीगल पर्पज, इट कैन बी यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, तब हम उसको नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया ट्रांसफर करेंगे, एनएआई को। ओके, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया को हम उसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, यदि उसका हिस्टोरिकल वैल्यू है, यदि उसको हम रिपीटेडली यूज करेंगे, ठीक है, तो उसको नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया में परमानेंटली उसको प्रिजर्व किया जाएगा। तो ये जो है डिफरेंट स्टेजेस है, तो स्टेजेस के ऊपर एमसीक्यू मिल सकता है और डिस्क्रिप्टिव भी मिल सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग को चलेंगे। स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है रिकॉर्ड मैनेजमेंट का। फर्स्ट वन, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइल्स। ओके, फर्स्ट उसमें जो स्टेप है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइल्स, ए फाइल शुड बी रिकॉर्डेड ओनली आफ्टर ऑल एक्शंस ऑन द इश्यूज इन दैट फाइल आर कंप्लीटेड। फाइल को कब रिकॉर्ड किया जाएगा, जब जो भी इट मींस फाइल के अंदर जो भी इश्यूज था, इश्यूज के ऊपर जो भी डिसीजन था ले चुके हैं, ऑलरेडी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज टेकन ऑल डिसीजंस ओके ऑन द इश्यूज। ओके, तब वो फाइल को रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, रिकॉर्ड मींस उसको नंबरिंग किया जाएगा, उसको पर्टिकुलरली इंडेक्स में रखा जाएगा और उसको हम रिटर्न करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन द फाइल इज क्लोज्ड एंड प्रिजर्व्ड अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल। जो रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल है, फाइल को हम क्लोज करेंगे और उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग फर्स्ट वन। ओके, फर्स्ट वन रिकॉर्डिंग ऑफ फाइल्स। सेकेंड वन कुछ एफिमरल टेम्पोररी रिकॉर्ड्स है, जैसे टेम्पोररी रिकॉर्ड्स में कैजुअल लीव्स रिकॉर्ड, और कुछ टेम्पोररी सर्कुलर्स है जो उसका पीरियड ओनली 1 ईयर है, 1 ईयर के बाद उसका वैल्यू कुछ नहीं है। सपोज जो कैजुअल लीव जो बेसिकली जो आपका एम्प्लॉइज है वो जो सीएल लेते हैं, उनका रिकॉर्ड 1 ईयर के बाद उसका वैल्यू कुछ नहीं है, और कुछ टेम्पोररी सर्कुलर्स है उसका वैल्यू भी कुछ नहीं है, तो वो सब है एफिमरल रिकॉर्ड्स। सो 1 ईयर के बाद उसको
डिस्ट्रॉय कर देना है, वीड आउट कर देना है। ओके, सो दे मे बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर 1 ईयर विदाउट फॉर्मल रिकॉर्डिंग। उसको कोई फॉर्मल रिकॉर्डिंग का जरूरत नहीं है, क्योंकि ओनली उसका जो रिटेंशन पीरियड है ओनली 1 ईयर, द करेंट ईयर है। उसके बाद उसको फॉर्मल रिकॉर्ड करना जरूरत नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ठीक है, किसको रिकॉर्ड किया जाएगा ना, जब फाइल में जो इश्यूज था, इश्यूज के ऊपर पूरा डिसीजन लेने के बाद फाइल को नंबरिंग करके उसको इंडेक्स नंबर डाल के उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। मगर ये जो एफिमरल रिकॉर्ड्स है उसका जरूरत नहीं है, 1 ईयर के बाद और उसका वैल्यू कुछ नहीं है, तो उसको क्यों फॉर्मल रिकॉर्ड किया जाएगा। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड वन, ई फाइल्स के ऊपर रिकॉर्डिंग इन ई फाइल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। इन ई ऑफिस, ओके, द इलेक्ट्रॉनिक फाइल व्हेन वर्क ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक फाइल। अभी आप देखा होगा ई ऑफिस के ऊपर अभी काम चल रहा है। अभी ईच एंड एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एक्चुअली द रिकॉर्ड्स, फाइल्स, all notes, correspondence, everything can be retained, okay, through actually electronic mode। अभी फिजिकल मोड में जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिकल मोड में कुछ दिन के बाद वो डैमेज होता है और धीरे धीरे उसका पेपर जो खराब हो जाता है और जो लेटर्स उसके ऊपर जो वर्ड्स है वो इंडिस्टिंक्ट हो जाता है। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक फाइल के ऊपर काम चल रहा है। ओके, अभी स्टार्ट हो चुका है, तो लगभग अभी पूरा रिकॉर्ड्स एक्चुअली ई फाइल में ही रहेगा। So when work on an electronic file is finished, it is closed and moved to a closed folder। जो ई फाइल में जो वर्क चल रहा था, जो ई फाइल में जो भी इश्यूज था, जो भी लेटर्स था, जो भी रिपोर्ट्स था, जो भी नोट्स था, तो अभी उसके ऊपर काम खत्म हो चुका है, तो वो फोल्डर को क्लोज किया जाएगा। ओके, मूव टू ए क्लोज्ड फोल्डर में वो उसको रखा जाएगा। द फाइल क्रिएटर, जो फाइल क्रिएट किया था, जैसे जो डीलिंग असिस्टेंट, ओके, क्लोजेस द फाइल आफ्टर अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यूजुअली सेक्शन ऑफिसर और अबव। एक्चुअली जब ई फाइल के ऊपर काम चल रहा था, अभी वो काम फिनिश हो गया, तो उसको हम क्लोज्ड फोल्डर में मूव करेंगे। एक क्लोज्ड फोल्डर रहेगा, उसको हम मूव कर देंगे। और जो फाइल क्रिएटर है उसको क्लोज करेगा आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यूजुअली सेक्शन ऑफिसर और अबव। ओके, तो ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। जब ई फाइल को क्लोज किया जाएगा तब जो फाइल क्रिएट किया था वो क्लोज करेगा, बट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट वन, द क्लोज्ड फाइल कैन बी व्यूड बाय। फिर जो क्लोज्ड फाइल है उसको भी व्यू किया जा सकता है। जो ऑफिसर उसको क्लोज किया था, द ऑफिसर हु अप्रूव्स द क्लोजर, दोनों, जो ऑफिसर क्लोज किया था वो उसको रिट्रीव कर सकता है, उसको ओपन कर सकता है क्लोज्ड फाइल को आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द इट मींस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग इन ई फाइल सिस्टम, इसमें एक चीज हमको मिला कि जब ई फाइल का वर्क चल रहा था उसमें जो भी रिपोर्ट्स था, कि जो भी लेटर्स था, ठीक है, उसके ऊपर काम चल रहा था, जब पूरा फिनिश हो जाएगा उसको क्लोज्ड फोल्डर में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और उसमें जो फाइल क्रिएटर था उसको जब क्लोज करेगा वो पहले अप्रूवल लेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, और वो भी ओपन हो सकता है। क्लोज्ड फोल्डर जो है, जो क्लोज्ड फाइल है उसको, जो क्लोज्ड ई फाइल है उसको ओपन हम कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकता है जो ऑफिसर उसको क्रिएट किया था आफ्टर अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट वन, रीओपनिंग ऑफ क्लोज्ड फाइल इफ रिक्वायर्ड। द क्लोज्ड फाइल कैन बी रीओपन। मैं अभी बताया था जो क्लोज्ड फाइल है उसको रीओपन किया जा सकता है कि नहीं, रीओपन किया जाएगा। जो फाइल क्रिएटर था वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेके, ओके, जो क्लोज्ड फाइल है उसको रीओपन कर सकता है। ठीक है, वही चीज, सेम थिंग। ओके, देन नेक्स्ट वन, रिव्यू ऑफ डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच डिपार्टमेंट मस्ट रिव्यू एंड रीइश्यू इट्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस पीरियडिकली टू कीप देम अपडेटेड। इसमें एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका कंसर्न डिपार्टमेंट का प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, ओके, जो परचेज प्रोसीजर था, अभी परचेज प्रोसीजर अपडेट हो चुका है। ठीक है, अपडेट जब हो जाएगा, वो पहले परचेज प्रोसीजर के ऊपर सर्कुलर निकला था, अभी वो आउटडेटेड हो चुका है, अभी परचेज प्रोसीजर को हम अपडेट करेंगे, तो पीरियडिकली ऐसे अपडेट होगा। जो डिपार्टमेंट उसको रिव्यू करेगा, फिर वो इंस्ट्रक्शंस को री इश्यू करेगा पीरियडिकली टू कीप देम अपडेटेड। जैसे मैं एक एग्जांपल बताया, पहले परचेज प्रोसीजर का सर्कुलर था, वो परचेज प्रोसीजर को हम फॉलो कर रहे थे,
कि इतना के अंदर डायरेक्ट परचेज करोगे, कि इतना अमाउंट के बाद आप इट मीन्स सपोज आप मार्केट सर्वे करोगे, कि इसके बाद आप 3 फार्म्स को कंपेयर करोगे, ऐसे था। मगर अभी वो जो अमाउंट था, वो जो लिमिट था, वो लिमिट अभी उसको रिव्यू किया जा चुका है। तो फिर एक न्यू उसी रिलेटेड में न्यू सर्कुलर इशू होगा कि अभी ये जो परचेज सर्कुलर जो प्रीवियस था वो आउटडेटेड हो गया, अभी ये न्यू सर्कुलर को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, बैकअप ई फाइल्स। जो भी ई फाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स, शुड ऑल्सो बी स्टोर्ड इन एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया। एक्सटर्नल स्टोरेज सपोज सीडी है, कि डीवीडी है, कि हार्ड डिस्क है, वो ई फाइल्स को हम बैकअप करने के लिए भी रख सकते हैं। वहां पर तो फोल्डर में है, और यहां पर एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया में रख सकते हैं, सीडी में रख सकते हैं, हार्ड डिस्क में रख सकते हैं, ठीक है। और द वर्किंग कंडीशन ऑफ दैट मीडिया मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली। तो उसका वर्किंग कंडीशन को रेगुलरली चेक किया जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट वंस इन ए वीक टू प्रिवेंट डाटा लॉस। एवरी वीक में वंस उसको चेक करना है, उसका वर्किंग कंडीशन को, क्योंकि कभी कभी क्या है, वो डाटा लॉस हो सकता है। तो इट मीन्स बैकअप ई फाइल्स हम एक्सटर्नल स्टोरेज में रख सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये जो 6 स्टेप्स था, ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिकॉर्डिंग से, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे। डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस फॉर रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, क्या डिपार्टमेंट का क्या इंस्ट्रक्शंस है। ईच डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स फॉर हैंडलिंग इट्स रिकॉर्ड्स। एवरी डिपार्टमेंट उसका स्पेसिफिक रूल्स है, स्पेसिफिक प्रोसीड्यूर्स है, कि हम रिकॉर्ड्स को कैसे हैंडल करेंगे, ओके, रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन होगा, ओके, थॉरोली कैसे हम जो रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल उसको हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेंगे, कि उसको कैसे रिव्यू करेंगे, कि कब उसको वीड आउट करेंगे, कि कब उसका अप्राइजल में जाएंगे, सम रिकॉर्ड्स को हम फिर फर्दर एग्जामाइन करेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस है कि नहीं। यदि उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है तो उसको हम नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया में भेजेंगे। तो ये डिपार्टमेंट का स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रोसीड्योर्स है, जो इट मीन्स रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या क्या रेगुलेट्स है, दीज इंस्ट्रक्शंस रेगुलेट रिकॉर्डिंग ऑफ फाइल्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्शन। जब पूरा एक्शन, जो भी इट मीन्स इश्यूज था, जब इश्यूज के ऊपर पूरा डिसीजन ले लिया जाएगा, तब फाइल्स को रिकॉर्ड किया जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइल्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्शन। फाइल कब तक एक्टिव है, जब तक एक्चुअली व्हेन द इट मींस इश्यूज आर बीइंग प्रोसेस्ड। जो भी इश्यूज है वो उसका ऊपर प्रोसेस चल रहा है, एक्टिव है। जब जो भी इश्यूज था उसके ऊपर पूरा डिसीजन लेने के बाद, ओके, वो फाइल को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा कि इसी मैटर में जो भी इश्यूज था वो उसके ऊपर डिसीजन लिया जा चुका है। उसको नंबर करेंगे और उसको इंडेक्स में पर्टिकुलरली डालेंगे, तो फ्यूचर में उसको हम ट्रेस आउट कर सकते हैं और प्रॉपरली लोकेट कर सकते हैं। फिर उसको रिटर्न किया जाएगा। फिर रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड रिटेंशन पीरियड। जब रिटेंशन पीरियड, सपोज उसका रिटेंशन पीरियड 5 ईयर्स था पर्टिकुलरली एक फाइल का, तो उसके बाद हम उसको रिव्यू करेंगे कि रिव्यू में क्या होगा, क्या हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे क्योंकि उसका और कुछ वैल्यू नहीं है, क्या हम उसका कुछ वैल्यू है आगे में उसको यूज किया जाएगा, तो हम इसको रिटर्न करेंगे। हाँ, यदि उसका कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, कुछ ऐसा गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड मैटर है, कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स रिलेटेड मैटर है, कि उसको डिपार्टमेंट उसको बार बार यूज करता है, तो उसको नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया को भेजेंगे। नेक्स्ट वन, वीड आउट और डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स दैट आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। द इंस्ट्रक्शंस मस्ट फॉलो द रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल इशूड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट इशू किया है कि किस रिकॉर्ड को कितना दिन तक आप रख सकते हो और किसको परमानेंटली रख सकते हो, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे में। व्हिच रिकॉर्ड्स मस्ट बी परमानेंटली preserved and which records can be preserved for some fixed period of time, then after that it can be reviewed, and if there is no value then it can be weed out, it can be removed. The departments must periodically review and update these instructions so that they remain relevant. तो ये सब डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस है रिलेटेड टू द रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम कैटेगराइज करेंगे। तो कैटेगराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स में एक्चुअली कैटेगरी 3 टाइप्स है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। कैटेगरी ए में कीप एंड माइक्रो फिल्म। अच्छा, इसमें क्या है, फाइल्स अंडर दिस कैटेगरी आर परमानेंटली प्रिजर्व्ड, जिसको परमानेंटली हम प्रिजर्व करेंगे, एंड ऑल्सो माइक्रो फिल्म्ड और डिजिटली प्रिजर्व्ड बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम माइक्रो फिल्म के आकार में रखेंगे कि डिजिटली उसको प्रिजर्व करेंगे। अच्छा, आप बोलेंगे कि सर सपोज माइक्रो फिल्म क्या है, बट स्मॉल फोटोग्राफिक फिल्म ऑन व्हिच डॉक्यूमेंट्स आर फोटोग्राफ्ड। ओके, एक फोटोग्राफिक फिल्म है, स्मॉल, माइक्रो मीन स्मॉल, तो स्मॉल इट मीन्स फिल्म ऑन व्हिच डॉक्यूमेंट्स आर फोटोग्राफ्ड। वो डॉक्यूमेंट्स को हम फोटोग्राफ के आकार में कन्वर्ट करके एक स्मॉल फिल्म क्रिएट करेंगे, स्टोर्ड इन ए रिड्यूस साइज फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो एक ये स्मॉल फोटोग्राफिक फिल्म है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है, फाइल्स फॉर परमानेंट administrative preservation which contain very serious documents, very precious documents whose original must be protected and used rarely to avoid damage or loss। क्योंकि बहुत प्रेसियस डॉक्यूमेंट है जिसका ओरिजिनलिटी को हम प्रोटेक्ट करेंगे और उसको रेयरली हम यूज करेंगे, और उसको जैसे कैसे वो डैमेज और लॉस नहीं होगा उसको हम अवॉइड करेंगे। कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंटली बाय मेनी ऑफिसेस और डिपार्टमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स को रेगुलरली, इंटरमिटेंटली, रिपीटेडली यूज बाय मेनी ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट्स फॉर रेफरेंस। ठीक है, वो कैटेगरी ए में आएगा। फाइल्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस, कुछ ऐसा लीगल मैटर्स है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज है, उसका हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस है, उसको हम परमानेंटली प्रिजर्व करेंगे और उसमें उसको डिजिटल फॉर्म में माइक्रो फिल्म आकार में रखेंगे। एग्जाम्पल, ओरिजिनल गवर्नमेंट पॉलिसीज, हिस्टोरिक एग्रीमेंट्स और ऑर्डर्स और इंपोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एग्जाम्पल को याद रखिए, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज डिसीजन है, ओरिजिनल गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजंस, हिस्टोरिक एग्रीमेंट्स और ऑर्डर्स और इंपोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये कैटेगरी ए में आएगा, ये परमानेंटली प्रिजर्व होगा और इसको हम नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया में रखेंगे। ओके, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया, एनएआई में इसको रखा जाएगा, क्योंकि ये बहुत प्रेसियस है और उसका डैमेज और लॉस नहीं होगा। और उसका कैसे ये डैमेज और लॉस नहीं होगा, इसके लिए उसको माइक्रो फिल्म में रखते हैं, एक स्मॉल माइक्रो इट मीन स्मॉल फोटोग्राफिक फिल्म में रखते हैं, और उसका हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस है, उसको बार बार एक्चुअली डिपार्टमेंट की ऑफिसेस रिफरेंस के लिए यूज करते हैं, और ये बहुत प्रेसियस डॉक्यूमेंट है। मैं एग्जांपल भी दिया। ठीक है, ये कैटेगरी ए है। अच्छा, सेकंड कैटेगरी में जो डॉक्यूमेंट आएगा वो परमानेंट होगा, मगर डू नॉट माइक्रो फिल्म, उसको कोई फोटोग्राफिक फिल्म के आकार में हम नहीं रखेंगे, ये भी परमानेंट है। दीज फाइल्स आर ऑल्सो केप्ट परमानेंटली, इसको परमानेंटली हम रखेंगे, बट इसमें माइक्रो फिल्म का जरूरत नहीं है। जैसे माइक्रो स्मॉल फोटोग्राफिक फिल्म के आकार में रखेंगे, इसमें जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट एक्सट्रीमली प्रेसियस। ये जस्ट कैटेगरी ए में जो बताया, इसमें ये एक्सट्रीमली प्रेसियस नहीं है, और फ्रीक्वेंटली ये प्रेसियस है मगर नॉट एक्सट्रीमली प्रेसियस और फ्रीक्वेंटली यूज्ड। क्योंकि कैटेगरी ए में वो बहुत एक्सट्रीमली प्रेसियस है और फ्रीक्वेंटली यूज होता है, मगर इसमें क्या है, दे आर नॉट एक्सट्रीमली प्रेसियस और फ्रीक्वेंटली यूज्ड, बट इंस्टेड ऑफ दिस also it can be preserved permanently, but not in microfilm form, not in photographic, it means small photographic film form, जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल में क्या आता है, परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फाइल्स, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फाइल्स, ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट रिकॉर्ड्स, इंपोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉरेस्पॉन्डेंस, ये सब कैटेगरी बी में आएगा, जिसको हम परमानेंटली प्रिजर्व करेंगे मगर माइक्रो फिल्म के आकार में नहीं रखेंगे। कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में ओनली डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, कैटेगरी ए में एक स्मॉल फोटोग्राफिक फिल्म में हम रिकॉर्ड्स को रखते हैं, मगर कैटेगरी बी में जो परमानेंट रिकॉर्ड्स है उसको हम स्मॉल फोटोग्राफिक फिल्म के आकार में नहीं रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन कैटेगरी सी में, ये एक फिक्स्ड पीरियड के लिए हम रखेंगे। कैटेगरी सी कीप फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, ये परमानेंट नहीं है। दीज फाइल्स आर टेम्पोररी इंपोर्टेंस एंड आर केप्ट ओनली फॉर ए लिमिटेड पीरियड, मैक्सिमम पीरियड 10 ईयर्स है, याद रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। कैटेगरी सी ये तो टेम्पोररी है
और इसको जो हम रिटर्न करेंगे उसका मैक्सिमम 10 ईयर्स रहेगा। आफ्टर द रिटेंशन पीरियड दे आर रिव्यूड, उसको रिव्यू किया जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो इसमें दिया है देखिए C1 माने 1 ईयर रिटेंशन पीरियड, 3 ईयर्स रिटेंशन पीरियड C3, 5 ईयर्स रिटेंशन पीरियड, 10 ईयर्स रिटेंशन पीरियड। इसमें मैक्सिमम जो कैटेगरी सी में मैक्सिमम 10 ईयर्स जो रिटेंशन पीरियड मैक्सिमम रहेगा 10 ईयर्स रहेगा। अच्छा, यहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे कैटेगरी सी फाइल टू बी केप्ट फॉर 1 ईयर, मैं बता दिया। तो उसमें एग्जांपल आप फर्स्ट देख लीजिए, कुछ रूटीन करेस्पॉन्डेंस है, कुछ टेम्पोररी प्रोजेक्ट फाइल्स है, कुछ माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है। इसको परमानेंटली प्रिजर्व नहीं किया जाएगा, उसको ये टेम्पोररी है, उसका जो रिटेंशन पीरियड चाहे 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स। अच्छा, यदि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ऐसा एक रिकॉर्ड है जो बियॉन्ड 10 ईयर्स चला जाएगा, जब बियॉन्ड 10 ईयर्स चला जाएगा हम उसको रिकॉर्ड जो कैटेगरी बी में शिफ्ट कर देंगे, मगर कैटेगरी सी में जो मैक्सिमम पीरियड है 10 ईयर्स है। यदि रिव्यू हुआ 10 ईयर्स, सपोज एक ऐसा ऑर्डर था जो 10 ईयर्स उसका रिटेंशन पीरियड था, उसके बाद उसको रिव्यू किया जाएगा, रिव्यू में पता चला कि उसका फर्दर यूज होगा, ठीक है, उसका वैल्यू है, तो वो 10 ईयर्स बियॉन्ड चला जाएगा। जब 11 ईयर्स की, 12 ईयर्स की, 13 ईयर्स ऐसे जब चला जाएगा वो कैटेगरी बी में शिफ्ट हो जाएगा। कैटेगरी बी क्या है ना, परमानेंटली हम रखेंगे मगर माइक्रोफिल्म के आकार में नहीं। तो उसी चीज को मैं यहां पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो ये कैटेगरी सी है। हाँ, कैटेगरी सी में मैं अभी एक चीज आपको बताया था, यदि ये ग्रेटर देन 10 ईयर्स हो जाता है तो इसको कैटेगरी बी में शिफ्ट कर दिया जाएगा, कैटेगरी बी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब कैटेगरी बी में वो चला जाएगा वो परमानेंटली रहेगा, ठीक है। अभी क्लियर अंडरस्टूड नॉट, बट इसका जो कैटेगरी सी का जो है वो अप टू 10 ईयर्स है। 10 ईयर्स के बाद जब रिव्यू होगा तब हम देखेंगे कि उसका वैल्यू है और उसका फर्दर यूज होगा, तो मोर देन 10 ईयर्स जाएगा तो वो कैटेगरी बी में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट वन देखिए, ई फाइल्स को देखिए। ई फाइल्स में क्या है, उसमें फिजिकल फाइल्स में जो फिजिकल फाइल्स था उसमें 3 कैटेगरी था, मगर अभी जो कैटेगरी ई फाइल्स आ गया, डिजिटल फाइल्स, इसमें 2 कैटेगरीज है, कैटेगरी ए और कैटेगरी सी, याद रखना है ई फाइल्स में जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स। तो फॉर इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स ओनली 2 कैटेगरीज आर देयर। अच्छा, कैटेगरी ए विथ परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और हिस्टोरिकल वैल्यू, जो इट मीन्स परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू है और जो रिकॉर्ड्स का हिस्टोरिकल वैल्यू है, ओके, वो कैटेगरी ए जो ई फाइल में, इलेक्ट्रॉनिक फाइल में रहेगा, जैसे पॉलिसी डिसीजंस, इंपोर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स, ठीक है। कैटेगरी सी है टेम्पोररी रिफरेंस, ई फाइल्स विद टेम्पोररी रिफरेंस वैल्यू केप्ट फॉर नॉट मोर देन 10 ईयर्स। देखिए, इसमें 2 कैटेगरी है, कैटेगरी ए तो परमानेंट है, कैटेगरी सी जो है इसमें जो ई फाइल्स है वो टेम्पोररी रिफरेंस के लिए है, उसको हम रखेंगे नॉट मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल से ज्यादा नहीं, ये जो ई फाइल को रखेंगे 10 साल से ज्यादा नहीं। अच्छा, यदि वो जरूरत होता है वो ई फाइल, इफ नीडेड बियॉन्ड 10 ईयर्स, देन वो कैटेगरी ए को चला जाएगा, दे आर अपग्रेडेड टू कैटेगरी ए। तो उसमें याद रखिए फिजिकल जो फाइल्स है वो 3 कैटेगरीज है, एबीसी, और जो ई फाइल्स क्या कैटेगरी है, टू टाइप्स है, कैटेगरी ए, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए तो परमानेंट है, ठीक है, जो ई फाइल है वो परमानेंट है, मगर कैटेगरी सी जो है, जो ई फाइल है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल है, वो टेम्पोररी के लिए यूज हो जाता है। तो टेम्पोररी रिफरेंस के लिए यूज होता है, जिसको हम मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए यूज करते हैं। यदि बियॉन्ड 10 ईयर्स जाएगा, इसको यूज होगा, उसका वैल्यू है वो ई फाइल का, तो उसको ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर दिया जाएगा कैटेगरी ए में, ठीक है। क्लियर? तो फिजिकल फाइल, ई फाइल में डिफरेंस आपको पता चल गया। जो फिजिकल फाइल 3 टाइप्स है मगर ई फाइल 2 टाइप्स है। मगर फिजिकल फाइल में बताया था जो कैटेगरी सी है उसका जो पीरियड, जो रिटेंशन, मैक्सिमम रिटेंशन पीरियड 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स के बाद हम उसको रखेंगे तो वो कैटेगरी बी में अपग्रेड हो जाएगा। मगर इसमें ई फाइल्स केस में यदि वो कैटेगरी सी में है, यदि उसको बियॉन्ड 10 ईयर्स उसका यूजफुलनेस है, उसका वैल्यू है, तब वो कैटेगरी ए में अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। देखो, अभी 10 क्वेश्चंस देखेंगे, फिर मेरा नेक्स्ट पार्ट में मैं रिटेंशन शेड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट जो रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल को मैं डिस्कस करूंगा। तो आज का जो फर्स्ट पार्ट में देखिए 10 एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हिच स्पेसिफिक सिनेरियो अलाउज ए फाइल टू बी डिस्ट्रॉयड विदाउट बीइंग फॉर्मली रिकॉर्डेड। मैं बताया था कोई कौन सा ऐसा फाइल है
जिसको फॉर्मली रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। मैं बताया था ऐसा कैजुअल लीव रिलेटेड फाइल और कुछ टेम्पोररी जो फाइल्स है जिसका 1 ईयर के बाद उसका वैल्यू कुछ नहीं है, तो उसको कोई फॉर्मल रिकॉर्ड करना जरूरत नहीं है, तो उसको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा आफ्टर 1 ईयर। तो उसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो एफिमरल रिकॉर्ड्स, अब देखिए मैं डिस्कस कर चुका हूं, एफिमरल रिकॉर्ड्स लाइक कैजुअल लीव और टेम्पोररी सर्कुलर्स आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई फाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स, व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट फॉर क्लोजिंग ए फाइल? कैसे कब वो ई फाइल को क्लोज किया जाएगा? तो क्लोज जब होगा, आप देखिए जो ई फाइल को क्रिएट किया था जो डीलिंग असिस्टेंट, वो अप्रूवल लेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो बिलो रैंक है सेक्शन ऑफिसर, तो सेक्शन ऑफिसर एंड अबव। तो यदि वो फाइल को क्लोज किया जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो भी इश्यूज था, जो भी एक्शंस था, लिया जा चुका है, अभी हम क्लोज करके उसको क्लोज्ड फोल्डर में डालेंगे। मगर जब उसको क्लोज किया जाएगा, जो डीलिंग असिस्टेंट वो ई फाइल को क्रिएट किया था, वो अप्रूवल लेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। अप्रूवल लेने के बाद उसको क्लोज्ड फोल्डर में डालेगा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस, इट मस्ट बी क्लोज्ड बाय द डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स ऑफिसर, नो, it requires approval from a competent authority at the level of section officer or above. It must be moved to an external media drive immediately upon after completion. It can only be closed by the National Archives of India after an appraisal. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जब क्लोज होगा, जो डीलिंग असिस्टेंट वो ई फाइल को क्रिएट किया था, वो अप्रूवल लेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो लेवल रैंक होगा सेक्शन ऑफिसर और अबव। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, a file contains a document so precious that its original must be preserved intact to avoid damage, yet it is required for frequent reference. Under which category must this be recorded? मैं बताया था कुछ प्रेसियस डॉक्यूमेंट्स है जिसका जो ओरिजिनल है उसका ओरिजिनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वो डैमेज नहीं होगा, जैसे वो लॉस नहीं होगा, और वो बार बार फ्रीक्वेंटली वो फर्दर रिफरेंस के लिए यूज होता है, वो कैटेगरी ए में आता है, जिसको हम माइक्रो फिल्म के आकार में भी रखते हैं, एक शॉर्ट फोटोग्राफिक फिल्म के आकार में भी रखते हैं। तो बहुत प्रेसियस है, उसका ओरिजिनलिटी चाहिए, उसका डैमेज नहीं होगा, जैसे लॉस नहीं होगा, इसके लिए उसको माइक्रो फिल्म के आकार में प्रिजर्व किया जाता है, जिसको परमानेंटली प्रिजर्व किया जाएगा, और जिसको डिपार्टमेंट को कि ऑफिसर्स को उसका रिफरेंस रेगुलरली चाहिए। ठीक है, तो उस कैटेगरी ए में आएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू द कैटेगराइजेशन रूल्स फॉर ई फाइल्स डिफर फ्रॉम फिजिकल फाइल्स बेस्ड ऑन द टेक्स्ट प्रोवाइडेड? मैं बताया था जो ई फाइल्स 2 टाइप्स है, कैटेगरी ए, कैटेगरी सी, बट फिजिकल फाइल्स 3 टाइप्स है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। तो उसमें देखिए ई फाइल्स हैव 3 कैटेगरीज जस्ट लाइक फिजिकल फाइल्स। नो, गलत है। E-files don't have a category B. They move straight from C to A if upgraded. यही करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। E-files cannot be upgraded once they are assigned to category C. ये गलत है। E-files are always considered category A regardless of their content. ये नहीं है। एक्चुअली मैं बताया था E-files 2 टाइप्स होता है। एक कैटेगरी ए वो परमानेंट है, और जो कैटेगरी सी उसको वो ई फाइल को, इलेक्ट्रॉनिक फाइल को मैक्सिमम 10 इयर्स तक रिटर्न किया जाएगा। यदि बियॉन्ड 10 इयर्स वो ई फाइल को रिटर्न किया जाएगा, क्योंकि उसका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू है, ठीक है, और उसका यूजफुलनेस है, तब ऑटोमेटिकली वो उसको अपग्रेडेड किया जाएगा कैटेगरी ए में, और ई फाइल केस में कैटेगरी बी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैंडेटरी मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर ई फाइल्स स्टोर्ड ऑन एक्सटर्नल मीडिया? तो ई फाइल्स को आप देखिए, मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं। ई फाइल्स को उसका बैकअप के लिए हम ई फाइल्स को भी एक्सटर्नल मीडिया में रखेंगे, जैसे सीडी है, डीवीडी है, कि हार्ड डिस्क में रखेंगे, और एवरी वीक में उसका वर्किंग को हम चेक करेंगे। कभी कभी क्या है, एवरी वीक में, क्योंकि नहीं तो वो डाटा लॉस हो सकता है, तो उसको बैकअप के लिए हम एक्सटर्नल मीडिया में रखेंगे, जैसे सीडी है, कि डीवीडी है, कि हार्ड डिस्क है, इसमें हम रखेंगे, और उसको वीकली चेक किया जाएगा उसका वर्किंग को।
क्योंकि कभी कभी डाटा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें वही क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मैंडेटरी मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर ई फाइल स्टोर्ड ऑन एक्सटर्नल मीडिया। तो वीकली चेक्स, ऑप्शन सी, वीकली चेक्स ऑफ द मीडियाज वर्किंग कंडीशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, in the e-file electronic file system, if a category C electronic file needs to be retained for 12 years due to an exceptional administrative requirement, what must happen to its classification? मैं बताया था ई फाइल जो है 2 कैटेगरी है, ए है सी है। ये जो है ये तो परमानेंट है, ए परमानेंट है, ठीक है, और ये तो परमानेंट है। और जो ई फाइल सी है इसका मैक्सिमम पीरियड 10 ईयर्स है, इसका मैक्सिमम 10 ईयर्स है। यदि बियॉन्ड 10 ईयर्स वो ई फाइल को यूज किया जाएगा, क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू है, ऑटोमेटिकली वो उसको कैटेगरी ए में अपग्रेड कर दिया जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली कैटेगरी ए में अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो वही है, इट मस्ट बी ऑप्शन सी, इट मस्ट बी अपग्रेडेड टू कैटेगरी ए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बियॉन्ड 12 ईयर, बियॉन्ड 10 ईयर्स चला गया, क्योंकि जो कैटेगरी सी का ई फाइल है उसको 10 मैक्सिमम 10 ईयर्स तक रिटर्न किया जाएगा। उसके बाद यदि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ एक्सेप्शनल एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू है, रिक्वायरमेंट है, तो ऑटोमेटिकली उसको कैटेगरी ए में अपग्रेड कर दिया जाएगा, क्योंकि ई फाइल्स में ओनली 2 कैटेगरी है, ए एंड सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टू द क्लोजर एंड रीओपनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक फाइल। तो क्लोजर रीओपनिंग में बता देता हूं, जब भी कोई फाइल को क्लोज किया जाएगा, की रीओपन होगा, उसको जो फाइल क्रिएट किया था वो क्लोज कर सकता है, रीओपन कर सकता है, मगर अप्रूवल मस्ट बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो मिनिमम रैंक होगा सेक्शन ऑफिसर, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेक्शन ऑफिसर और अबोव। तो जो भी फाइल को जब क्लोज किया जाएगा कि रीओपन होगा, तो जो फाइल को क्लोज किया था तो उसके पास पावर है, वो उसको रीओपन कर सकता है, मगर आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ओके, ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्लोज्ड फाइल कैन बी रीओपन्ड बाय द ऑफिशियल हु क्लोज्ड इट। जो ऑफिशियल वो फाइल को क्लोज किया था वो रीओपन कर सकता है, मगर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, what is the primary difference between the category A and category B for physical records? क्योंकि फिजिकल रिकॉर्ड्स में 3 टाइप्स का कैटेगरी है, 3 टाइप्स का कैटेगरी है। दोनों आप देखिए ए बी दोनों परमानेंट है, मगर ए को माइक्रोफिल्म के आकार में रखा जाएगा डिजिटल फॉर्म में, स्मॉल फोटोग्राफिक फिल्म के आकार में रखा जाएगा, मगर बी को माइक्रोफिल्म के आकार में नहीं रखा जाएगा। ये डिफरेंस है, वो दोनों परमानेंट है। यहां पर याद रखिए, जो ए एंड बी दोनों परमानेंट कैटेगरी में आता है, ठीक है, मगर ए माइक्रोफिल्म के आकार में होगा, स्मॉल फोटोग्राफिक फिल्म के आकार में रखेंगे, क्योंकि बहुत प्रेसियस है, उसका ओरिजिनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो एक स्मॉल फोटोग्राफिक फॉर्म फिल्म के आकार में रखा जाएगा, मगर बी को माइक्रोफिल्म के आकार में नहीं रखा जाएगा। वो एक्सट्रीमली प्रेसियस नहीं है कि उसका इतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है, तो वही डिफरेंस होगा। डिफरेंस में ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कैटेगरी ए इन्वॉल्व्स माइक्रोफिल्मिंग, कैटेगरी बी डज नॉट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ए फिजिकल फाइल of secondary importance is initially kept for 8 years. If it is later determined that it needs to be kept for 15 years, it is upgraded to। अच्छा, ये फिजिकल फाइल्स रिलेटेड है। फिजिकल फाइल 3 टाइप्स है। ये जो 8 इयर्स है ये कैटेगरी सी में था, ये कैटेगरी सी में था 8 इयर्स, और कैटेगरी सी में मैक्सिमम कितना है, हम रिटर्न कर सकते हैं 10 इयर्स, और 10 इयर्स के बाद रिव्यू होगा। रिव्यू में पता चला कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू है, वो एक्सेप्शनल रिकॉर्ड है, तो उसको 15 इयर्स तक रखा जाएगा। तो मोर देन 10 इयर्स मींस इसको कैटेगरी बी में अपग्रेड कर दिया जाएगा। इट इज अपग्रेडेड टू कैटेगरी बी, क्योंकि अप टू 10 इयर्स में कैटेगरी सी में रहेगा। यदि मैक्सिमम कैटेगरी सी जो फिजिकल फाइल
का जो थर्ड कैटेगरी कैटेगरी सी है वो टेम्पररी इन नेचर है और उसको हम मैक्सिमम 10 ईयर्स तक रिटेन कर सकते हैं। बियॉन्ड ऑफ दैट यदि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू है और बियॉन्ड ऑफ दैट 11 ईयर 12 ईयर्स की 13 ईयर्स हम उसको रिटेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कैटेगरी बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट। मैं बताया था स्टेजेस, तो स्टेजेस में फर्स्ट था क्रिएशन, देन था यूज, यूज के बाद था रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद था रिटेंशन, रिटेंशन के बाद था डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम डीआरआर था, तो डीआरआर के बाद था जैसे रिव्यू, ठीक है, डीआरआर के बाद डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम के बाद रिव्यू और वीड आउट, उसके बाद था अप्राइजल, उसके बाद था नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया। तो ये फर्स्ट देख लीजिए, यहां पर ऑप्शन बी क्रिएट होगा। फर्स्ट क्रिएशन है, देन यूज होगा, देन रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डिंग के बाद रिटेंशन होगा, पर यहां पर कुछ मिसिंग है। रिटेंशन के बाद क्या होगा, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम को चला जाएगा, क्योंकि नो लॉन्गर यूज है तो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम को हम ट्रांसफर कर देंगे। फिर उसके बाद इसके बाद रिव्यू और वीड आउट होगा, रिव्यू और वीड आउट, ठीक है, उसके बाद अप्राइजल, उसके बाद ट्रांसफर टू एनएआई। मेरा स्टेजेस देख लीजिए, जो स्टेजेस था 8 स्टेजेस था, तो उसमें 2 स्टेजेस नहीं है मगर ये सिस्टमेटिक है, क्रिएशन देन यूज, यूज के बाद रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में क्या है, पूरा जब पूरा इश्यूज फाइनल हो जाएगा, पूरा जो भी इश्यूज था उसके ऊपर डिसीजन हो जाएगा, उसको नंबरिंग किया जाएगा वो फाइल को और प्रॉपर इंडेक्स किया जाएगा और उसको रिटर्न किया जाएगा। रिटर्न मींस सपोज नो लॉन्गर यूज है तो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम को चला जाएगा, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम के बाद सपोज रिटेंशन शेड्यूल को फॉलो किया जाएगा, जब रिटेंशन पीरियड खत्म हो गया उसको रिव्यू और वो वीड आउट के बारे में सोचा जाएगा। फिर जब रिव्यू के बाद अप्राइजल थॉरोली एग्जामाइन होगा, क्या उसका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस है, कुछ उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू है, क्या उसका फर्दर यूज होगा। अप्राइजल के बाद उसको परमानेंटली नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया में यदि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है भेजा जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट का। उसका सेकंड पार्ट आप वेट कीजिए जिसमें मैं रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल लाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो माय फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। अप टू द लास्ट ऑफ द वीडियो ट्राई टू लिसन, डेफिनेटली यू कैन गेट सम क्वालिटी इंफॉर्मेशन। आज इतना ही है, फिर यही रिकॉर्ड मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट को वेट कीजिए जिसमें मैं रिटेंशन शेड्यूल को लाऊंगा। तो आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।